MGT 519 स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, लेक्चर नंबर 28। हम अपने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये देखेंगे कि हमने अब तक क्या कवर कर लिया। टिल नाउ वीव कवर्ड द सर्विस मार्केटिंग मिक्स। हमने जो फिजिकल एविडेंस, पीपल और जो प्रोसेस पोर्शंस ऑफ द सर्विस मार्केटिंग मिक्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। Just a brief recap that there were initially we studied that there were marketing mix में how many P's were there? आप मुझे बताएं। Yes, 4 P's. That is the product, the price, the promotion, and the place. Then we went on to study कि जैसे जैसे businesses of today they're increasing their emphasis on services. जो service based businesses जो हैं वो excel कर रहे हैं, और जो companies जो product based, जो tangible goods पे भी business कर रही हैं वो भी एक service element provide कर रही हैं। तो with the passage of time, marketers actually came up with 3 more P's, 3 additional P's. That is the physical evidence, the people, and the process element. When we talk of the physical evidence comprises of the material part of the service and the physical evidence part. जब people के बारे में हम बात करते हैं तो people should be better trained. They have to have better personal selling skills, and the third important element of people is the customer services. Then we studied about processes, कि process actually होता क्या, जो सर्विस जब आपके पास डिलीवर हो रही होती है तो वो जो बैक एंड पे तमाम तर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, those activities are known as the processes. Now we move on to a next topic. Now we are discussing कि product management क्या होती है। अब आप देखिए, when we started off studying, हमने सबसे पहले marketing के बारे में पढ़ा कि marketing क्या होती है। Then we studied theories about it. हमने needs के बारे में पढ़ा, Maslow's hierarchy of needs पढ़ी। फिर हमने competition, competitive market, core competencies, इस सब को हम cover करते गए। Then we studied about segmentation, targeting, positioning, branding, marketing mix. So एक strategic plan जो है उसकी formulation, उससे marketing plan की formulation, marketing plan की implementation, marketing plan की control और marketing plan की implementation through the marketing mix, वो सारा कुछ हमने cover कर लिया। Now comes in the process कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आप मैनेज किस तरह करेंगे, उस प्रोडक्ट को आप हैंडल किस तरह करेंगे। आपने एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च तो कर दिया, आपने उसकी सेगमेंटेशन कर दी, टारगेटिंग अच्छी कर दी, पोजीशनिंग सही हो गई, एक अच्छा उसका इमेज बन गया, ब्रांड इमेज स्ट्रांग हो गया, आपने उसकी प्राइस सही कर दी, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू हो गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई, उसकी प्रमोशन हो रही है थ्रू सेल्स चैनल, थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू पर्सनल सेलिंग, थ्रू पब्लिक रिलेशनिंग, उसका में फिजिकल एलिमेंट भी आ गया, उसका फिजिकल एविडेंस, उसमें पीपल एलिमेंट भी शामिल हो रहा है, उसमें साथ साथ जो है वो उसका प्रोसेस का प्रोपोर्शन जो है वो भी आपने देख लिया। ये सारी एक्टिविटीज हो गई। अब एक प्रोडक्ट जो है वो जो प्रोडक्ट को मैनेज करना itself is a very important strategic marketing decisions that you have to take to manage the product effectively. As a strategic marketer, आपने अपने प्रोडक्ट की मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बहुत फोकस करना है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। This aspect is the product management element.
Now, what is product management? Product management is an organizational life cycle function within a company which is dealing with the planning, the forecasting and production or marketing of products. If you look at this figure on the right hand side, as you can see from this model that the product management का जो function है ये सिर्फ आइसोलेशन में अकेले नहीं हो सकता, इसको मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, सेल्स एक्टिविटीज और जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो सब ओवरलैप कर रही हैं. आइसोलेशन में इनमें से कोई भी मार्केटिंग की एक्टिविटी एज अ होल कैन नॉट टेक प्लेस. एवरी एक्टिविटी इज कनेक्टेड टू अनदर एक्टिविटी थ्रू देयर डिफरेंट processes that are taking place. तो जो एक कंपनी में उसके ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल फंक्शन में when a product is being managed, this means कि उस प्रोडक्ट की सबसे पहले तो प्लानिंग हो रही है, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हो रही है. तो उस प्रोडक्ट की मैनेजमेंट के लिए बोथ द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द शॉर्ट टर्म गोल्स दे आर बीइंग सेट अप, और शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करने के साथ साथ कंपनी ने उन गोल्स के ऊपर परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया. कंपनी इज वर्किंग टू अचीव दोज गोल्स. देन एज अ सक्सेसफुल मार्केटर, एक सक्सेसफुल मैनेजर, आपको उसके बारे में फोरकास्टिंग भी होनी चाहिए. यू कैन एक्चुअली यू शुड थिंक अहेड कि ये प्रोडक्ट जो है इसको हमने अभी ये किस स्टेज पे है, क्या ये इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी पे है या डिक्लाइन पे. और आपने ये फोरकास्टिंग करनी है, जैसे कि हम अपने पीएलसी की लेक्चर में पढ़ रहे थे, दैट अ गुड मार्केटर शुड बी एबल टू फोरकास्ट कि ये प्रोडक्ट का जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो कस्टमर रिस्पॉन्स है, जो कंपेटिटर्स का रिस्पॉन्स है, जो मार्केट के एक्सटर्नल अदर फैक्टर्स देर अफेक्टिंग दिस प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट वेयर विल इट गो इन द नेक्स्ट 6 months. नेक्स्ट 6 months में क्या ये अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कर सकेगा, या ये मैच्योरिटी की तरफ चला जाएगा, या ये अपनी सेल्स बढ़ाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा. सो अ गुड मार्केटर शुड बी एबल टू फोरकास्ट ऑल दीज थिंग्स. इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन का एलिमेंट है वो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ही हिस्सा है. The product manager basically in conjunction with a close liaison with the production department actually tends to tell them कि अभी हमारी ये डिमांड है, अभी हमारे अब सीजन जो है समर सीजन आ रहा है, रमजान का सीजन आ रहा है. तो पेप्सी का जो प्रोडक्ट मैनेजर है, he would ask the production managers कि वो जो ऑपरेशंस की साइड है कि जी हमें अगर आप 10,000 यूनिट्स 1 month के सेल कर रहे थे, तो अभी समर्स में क्योंकि बिकॉज ऑफ रमजान इसको आप 20,000 यूनिट्स कर दें, और सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, वो डबल हो जाएंगी. या वो सर्दियों में से शुरू होने से पहले वो ये बता सकते हैं कि जी विद द एडवेंट ऑफ विंटर्स हम अपनी 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन को 7,000 पे कर दें. और द ऑब्वियस इज दैट विद द कमिंग ऑफ द विंटर्स जो कंपनी सेल्स हैं वो ड्रॉप करेंगी. But the product manager and the marketing manager, they know कि वो अभी अपनी strategies, अपनी marketing mix को इस तरह manipulate करने लगे, वो price थोड़ी reduce कर देंगे. पेप्सी की बॉटल अगर 1.5 लीटर की 75 की है तो उसको 70 की कर दिया, उसके साथ कोई डील ऑफर कर दी, और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो हैं, जो प्रमोशनल कैंपेन्स को भी एनहांस कर दिया. सो द सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. The managers, they can forecast this, that the sales are actually going to increase. So accordingly उसकी इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए और उस प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनेंगी. So all these activities ये एक दूसरे पे ओवरलूप कर रही होती हैं, वो in conjunction with each other they're working. Absolute isolation में कोई भी काम एक्टिविटी नहीं हो सकती. ये नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट अलग हो रही हो, सेल्स का काम अलग हो रहा हो और मार्केटिंग कम्युनिकेशन अलग हो रही है और उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. जस्ट इमेजिन हर कोई अपना अपना काम कर रहा हो विदाउट थिंकिंग कि दूसरा किधर है, तो क्या वो काम सक्सेसफुल हो सकता है? वेल, आई डोंट थिंक सो, नेवर.
So of products at all stages of the product life cycle, ये जो product management activities हैं, they are taking place. Growth stage में product management की different strategies होंगी, introduction में different होंगी, maturity पे different होंगी और decline के वक्त company के different objectives होती हैं. जो product management का role है, it consists of product development and product marketing. जो product management role में एक तो है product को develop किस तरह, उसके बारे में हम अभी देखेंगे, और product marketing के बारे में. These efforts, they're different but they're complementary efforts. यानी वो different तो हैं लेकिन वो एक दूसरे को complement कर रही हैं. जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि वो in conjunction with each other, every strategy is working. If there are 8 parts here and 4 parts here and they're all working together, so together these 12 components have to work to achieve their desired objectives. अब the objectives may be, एक company के objectives क्या क्या हो सकते हैं? Of course, to maximize sales revenue, अपना market share और profit. I tell this to you every time कि कोई भी marketing concern जो है, marketing concern कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ इसीलिए काम करेगी बिकॉज उनको अपने सेल्स रेवेन्यू इन्हांस करने, कंपनी ये चाहेगी कि उसका रेवेन्यू इन्हांस हो, उसका मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और इसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा हो. अब जैसा कि मैं आपको पीछे बता रहा था कि वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट. One of those prime aspects is the product performance. अब जो product management का जो एक main focus होता है वो होता है on driving the new product development. नया product को बनाने में product management का एक main role होता है. जब कोई product develop हो रहा होता है तो the product management gives its input so that a good, superior and a new product is created जो कि differentiate करता है from the other products already existing in the market. अगर कोई product जो है, अगर एक केचप की बॉटल है, अब कोई कंपनी जो है वो केचप अगर सेल कर रही है in bottles of glass, जैसे कि आज से कुछ ज़माने पहले होती थी, मिचेल्स की, नेशनल की, शीशे की ग्लास में केचप सेल होता था. अब when a new company came in, like Shangri-La came in, और उन्होंने जब अपना प्रोडक्ट डेवलप किया तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ग्लास बॉटल्स उन्होंने पॉलीपैक्स बनानी शुरू कर दिया. अब इस पॉलीपैक से क्या हुआ कि वन कंपनी ने अपनी कॉस्ट कम कर ली. कंपनी जो ग्लास बॉटल्स बनाती है उसके बजाय ये जो बॉटल्स बनी तो इससे उसकी कॉस्ट कम हो गई बेइंतहा. सेकेंडली ये कि पीपल स्टार्टेड हैविंग दिस इंप्रेशन कि जो कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स में बताना शुरू कर दिया कि जी इट्स इजी टू यूज, ग्लास बॉटल को तो आप हिला रहे हैं केचप नहीं निकल रहा, पॉलीपैक से आप उसको प्रेस करते जाएंगे तो केचप निकलता जाएगा. तो लोगों को एक डिफरेंट चीज ने अट्रैक्ट किया एंड सडनली द सेल्स वॉल्यूम ऑफ शैंग्रीला केचप इट इंक्रीज्ड because people found a good solution to one of their problems which they kept facing again and again कि केचप जी अंदर फंस गया, निकल ही नहीं रहा. अब उसको उल्टा कर रहे हैं, कोई मार रहा है, उसमें बॉटल कभी हाथ से छूट गई, बॉटल टूट गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, एक हैसल, एक हौच पौच सिचुएशन बन जाती थी. तो इस पे उस कंपनी ने कैपिटलाइज कर लिया. इसी तरह पिछले दिनों एक ऑयल कंपनी थी, उसने अपना ये एडवर्टाइज करना शुरू किया कि जी जो ऑयल के पैकेट्स होते हैं वो लोग जब निकालते हैं और पैकेट से गिराते हैं तो तेल कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, तो इसके अंदर हमने एक जग भी दे दिया, अब आप जग से पोर कर लें. अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया. अब ये डिफरेंशिएट जब हुआ है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक किस तरह पहुंची. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक इस तरह इंफॉर्मेशन पहुंची कि जब लोगों से फीडबैक लिया गया एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दिस फीडबैक केम
कि लोगों को ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ, कंपनीज को ये अंदाज़ा शुरू होना शुरू हुआ कि पीपल, द यूजर्स, उनको एक डिस्कम्फर्ट हो रही है कि वो जब केचप डालते हैं तो वो एक डिस्कम्फर्ट है. बाय द टाइम ये फीडबैक मार्केटिंग टीम ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट को पहुंचा, एंड देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट सैट डाउन विद द प्रोडक्शन पीपल कि लेट्स सॉल्व दिस इशू, हाउ कैन वी डू दैट, एंड देन अ सजेशन केम कि इसको पैक्स में कर दें. अब कंपनी अपनी कॉस्ट भी बचा रही है क्योंकि वो ग्लास विच इज ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव देन द प्लास्टिक पॉली पैक्स. तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंस इन पैकेजिंग. अब जो पैकेजिंग है वो मार्केटिंग वाले बैठ के पैकेजिंग तो नहीं करते किसी प्रोडक्ट की, उसके डब्बे तो नहीं बनाते, उसके कलर कॉम्बिनेशन तो नहीं करेंगे, बट दे प्रोवाइड द फीडबैक. सो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है वो एक्चुअली उस फीडबैक को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करती है सो दैट इट कैन रीच द राइट ईयर्स एंड दे कैन गेट द गुड फेवरेबल डिसीजंस. और इसी तरह प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में अपनी यूनिक बेनिफिट्स और जो सुपीरियर वैल्यू है दैट कैन बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर. The product performance is perhaps the number one driver of success and product profitability. All product performance is involved in the complete product life cycle. Depending on the size of the company, its history, product management has a variety of functions and roles. Like we were just discussing, कि product management जो है वो it channelizes the right information, it acts as a bridge between the sole marketing and the sole production people, because marketing people are hardly ever going to interact directly with the production people. So there has to be someone जो कि ये information को channelize भी कर रहा होगा. अब the bigger the company और उसकी जैसी history हो, product management उसी हिसाब से उसके रोल्स और फंक्शंस चेंज हो रहे होते हैं. अब जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट फंक्शन में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट इज सीन बाय द कंपनी इज द प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू सी एवरी कंपनी विच इज वर्किंग एट द डे एंड, चाहे वो कंपनी हो, कंपनी के एम्प्लॉयज हों, उनकी मैनेजमेंट हो या कंपनी का ओनर हो, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर अ कॉज, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग फॉर मॉनेटरी टर्म्स. अगर आपको या मुझे ये ना हो कि हमें इस काम करने के पैसे मिलेंगे, अगर हमें ये फीलिंग ना हो कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तो प्रॉब्ली इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज एवर गोइंग टू वर्क. There are going to be very few people who are so passionate about whatever they're working, whatever they're doing, that they will do it not thinking that they need money for it. I think there are going to be hardly few people. शायद हम उनको अपने हाथों पे गिन सकें. The rest, everybody is working because everybody wants money. अब money की requirement कितनी है, कितनी ज़्यादा है, that is another discussion. एक subjective discussion है, and we're not going into that. We're just talking that companies, their work because they need to earn money, they need to generate revenue. और जब revenue generate करेंगे तो वो उसका effect company owner को भी होगा. जब वो revenue ज़्यादा earn कर रहे होंगे तो उसका effect company की team पे भी होगा, company के staff पे भी होगा और उसकी labor पे भी होगा. So the companies, good intelligent companies जो कि developed organizations होते हैं, where very early on they communicate this message to their people कि if you earn profits you're going to get your bonuses, if you're not earning profits you're not going to get your bonuses, if you're not even meeting our break-even point a lot of you will lose your jobs, and if the company in the long run does not sustain itself, the company is going to close down and we're all going to be out of a job. We're all going to be out of money. So the people, they have to work, they have to perform so that they can earn profits. And once they're earning profits, they're getting bonuses, the company is happy, the owner is getting money, and everybody is able to make the ends meet.
तो इस काम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मीट्रिक फॉर इवैल्यूएशन है दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी जब अपना P&L, द प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी falls upon the shoulders of the product management. The product management actually sees कि जी जो marketing efforts हो गई, जो तमाम distribution efforts हो गई, all the efforts done, where is the profit and loss statement? हमें पता तो चले एक statement के साथ कि हमने इस quarter में, इस period में कितना profit बनाया। Generally people think कि जी या as students हम अक्सर दफ़ा ये बात करते थे, हम और आप भी शायद कभी सोचते हो कि जी जो accounting वाले हैं उन, अगर मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूं तो मैं हमेशा कहूंगा कि जी मार्केटिंग के बगैर कंपनी नहीं चल सकती। अकाउंट्स वाले, जो फाइनेंस वाले हैं, वो ये कहते थे कि जी फाइनेंस के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। HR वालों का ख्याल है कि हम बंदे नहीं देंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो कैसे कोई काम चलेगा। लॉजिस्टिक्स वाले कहते हैं कि जी चीज आएगी नहीं तो प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो मार्केटिंग बेचेगी क्या और अकाउंट्स हिसाब क्या लगाएगी, तो हमारे बगैर काम नहीं चल सकता। So you see, every department has different roles to play, but every department is working together. और कि जितनी एक डिपार्टमेंट्स के अंदर बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी to interact with each other, उतनी ही ज़्यादा वो डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। जितनी भी, जिस तरह मैं अक्सर दफ़ा वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये एक बहुत ही डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप लोगों ने शायद डेवलप्ड कंट्रीज का जो सुना हो, डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस का इतना ना सुना हो। अब डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो बहुत प्रॉपर हुई हुई है। उनके जो मेनली जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, P&L, HR, ये सारे मिल बैठ के जो भी डिसीजन लेते हैं वो उस डिसीजन में सबकी इनपुट होती है और वो सारे के सारे मिल के एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें तमाम तर डिपार्टमेंट्स आपस में एक क्लोज लाइजॉन के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स जब सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स के अचीव हो जाएंगे तो बेसिकली वो सारे ऑब्जेक्टिव्स एक जगह पे ज्वाइन हो जाते हैं, वो एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं और वो जगह होनी चाहिए जहां पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव इज डिफाइंड। अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू बाय 10% within the period of 1 year, so every department was going to set up its short-term objectives according to that. मार्केटिंग वाले अपनी एफर्ट्स उस हिसाब से करेंगे, प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग को प्रोडक्शन उतनी करके देंगे कि वो 10% इंक्रीज अर्न कर सकें, अकाउंटिंग वाले प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे सो दैट दे कैन एक्चुअली सी कि कंपनी के फंड्स निकल कहाँ रहे हैं, फाइनेंस वाले आर गोइंग टू calculate all the risks, the financial formulas, for all the long-term financial analysis, वो इस हिसाब से करेंगे। जो P&L वाले हैं वो उतनी ही प्रोडक्शन के लिए उतना ही रॉ मटेरियल ला रहे हैं जितना कि प्रोडक्शन को ज़रूरत है, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले उसी तरह लॉजिस्टिक्स, उसी तरह आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो रही है ताकि द कंपनी इज एबल टू अर्न द लॉन्ग टर्म 20% प्रॉफिट्स। तो एक कंपनी ऑब्जेक्टिव से every department sets up all its objectives and all departments are working together in close coordination with each other like a mesh। और प्रोडक्ट मैनेजमेंट फंक्शन को इवेल्युएट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ इवेल्युएटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस which is a key metric for evaluation. It gives you a complete picture just on one glance. एक पेज पे पता लग जाता है कि जी कंपनी की पूरे साल की या पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड की परफॉर्मेंस क्या थी, कंपनी ने क्या खोया क्या पाया, द प्रॉफिट एंड लॉस। It is one of the many things that need to happen to bring a product to market and actively monitor and manage it. जैसे कि मैं अभी हम यही बात कर रहे थे exactly कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज जस्ट नॉट अबाउट मैनेजिंग द प्रोडक्ट, सिर्फ उसको देखना नहीं है,
उसको प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के तरीके, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के तरीके और फिर उसको मैनेज करने के तरीके, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द प्रोडक्ट मैनेजर. In very large companies, the product manager may have effective control over shipment decisions to customers when system specifications are not met. जो good, strong, developed organizations होती हैं, not necessarily large, but they may be small as well, but companies which have their specific defined systems, उसमें the product manager, he has the authority, he has the capabilities and the responsibilities, most importantly, कि वो डिसाइड करेगा कि किस जगह पे कितनी ज़्यादा शिपमेंट्स होंगी कस्टमर्स को, यानी जो प्लेस एलिमेंट है वो डिसाइड कर रहे हैं, वो आप इस प्रोडक्ट मैनेजर्स डिसाइड करेंगे. और अगर जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हैं, आपके टारगेट्स हैं, इफ दे नॉट बीन अचीव्ड, तो उसके अकॉर्डिंगली दैट मैनेजर इज गोइंग टू ऑल्टर द डिसीजन. यानी जो हमने शुरू में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि प्लान की इम्प्लीमेंटेशन एंड देन कंट्रोलिंग द प्लान, evaluating the plan. So you're very actively and closely seeing कि where is the plan heading. और जहाँ पे वो plan change हो रहा है या जहाँ पे आपके objectives नहीं meet कर रहे हैं, you put a stop, you change it around, you alter the course and then you take a new direction. A product management has lots of roles. A product management is a well understood role in virtually every industry except technology. I'll tell you why later on. Other than the technology industry, बाकी जितनी भी industries हैं उसमें the product management is very well understood. People know the importance of product management. Product management की importance, product management की functionality, उसकी effectability, उसकी effectiveness, वो सारा कुछ जो है वो product management के sphere of responsibility में आ जाता है. In the last 10 years, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल है उसका इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजिकल कंपनीज पे भी बढ़ता जा रहा है. उससे पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डिडंट गो अलोंग वेरी वेल, दे डिडंट मूव अलोंग वेरी वेल, उनके बाद आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे. जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल है, इट स्पैन्स इनटू एक्टिविटीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टू टैक्टिकल. स्ट्रेटेजिक गोल्स बने, कंपनी ने अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाने के बाद जब वो मार्केटिंग प्लान्स के में आ गया, तो मार्केटिंग प्लान्स और टैक्टिकल प्लान्स बनाने शुरू हो गए. टैक्टिकल प्लान्स मीन कि किस तरह वो गोल्स को अचीव किया जाएगा, वो रास्ते को कैसे अचीव किया जाएगा. ये जो डिसीजन है, दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द प्रोडक्ट मैनेजर्स. जो मार्केटिंग का में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक रोल है, इट इज बेसिकली अ मैसेंजर ऑफ द मार्केट, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू द डिपार्टमेंट्स दैट नीड मार्केट फैक्ट्स एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली. अब जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसको मार्केट से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू द सप्लायर्स, थ्रू द डायरेक्ट सेलर्स, थ्रू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू द होलसेलर्स, यानी कोई भी इंटरमीडियरी जो बीच में, उसके थ्रू फीडबैक मिल रहा है, कंपनी की सेल्स टीम के थ्रू एक फीडबैक मिल रहा है, और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उससे उसको ऑन ग्राउंड जो एक्चुअल सेल्स हो रही हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हो रही है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, द प्रोडक्ट मैनेजर is going to communicate this information to the relevant departments, so that the production department or the research and development department, they can start working. If the product is not very successful, तो the R&D वाले जो हैं, they'll have to think कि हमें इस प्रोडक्ट में ऐसे क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे कि उन चेंजेस लाने की वजह से हमें ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिफाइन करना पड़े, सो दैट इट इज एबल टू एड्रेस द नीड्स ऑफ दोस पीपल. तो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने पास लाती नहीं है, बल्कि वो साथ साथ उसको बाकी डिपार्टमेंट्स को भी कम्युनिकेट कर देती है, ताकि दोज डिपार्टमेंट्स आर एबल टू टेक देयर डिसीजंस अकॉर्डिंगली.
The roles of product management also encompass that the changes based on the organizational structure of the company. Project management is a function which is separate on its own, or a member of a marketing or an engineering department. जो product management है, ये जब आप organizations में when it's working, when it's operating, so it can either be a completely different function, a completely different setup हो सकता है इसका, या ये एक marketing या engineering का एक subset हो सकता है. It may be working under the marketing department or it may be working under the engineering department. The product manager जो है, he is basically responsible for analyzing the market. जो एक product manager है वो market के conditions को analyze कर रहा होता है और उसके जो features होते हैं और जो functions होते हैं किसी product को, वो उन features को और उन functions को जो है उसके लिए responsible होता है कि वो उसको analyze कर रहा होता है और वो उसको देख रहा होता है कि वो जो information है वो उसको कितनी वो relevant है to which department, and once the information is provided to that particular department, so how is that department going to respond to it, and then it oversees कि क्या that particular department has it changed, क्या उस department ने अब उसके हिसाब से अपने इस effort को modify कर लिया है ताकि the company is able to address the needs of those individual customers. देखिए, from the start of this sessions, from the start of this course, हम एक बात करते आए हैं कि कस्टमर की एक नीड होती है, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक प्रोडक्ट बनाई जाती है, वो मार्केटर्स वो रिसर्च करते हैं, मार्केटर्स वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, कस्टमर अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए उसकी कोई वांट डेवलप होती है, वांट के लिए एक डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज बीइंग इंड्यूस्ड बाय द कंपनी. ओके, बट देन ये सारे फंक्शंस तो मार्केटिंग के फंक्शंस हैं ना. अब खाली मार्केटिंग अलोन कैन नॉट डू ऑल द फंक्शंस, अदरवाइज देयर विल बी नो अदर डिपार्टमेंट्स. सिर्फ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही बुक कीपिंग कर रहा हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही प्रोक्योरमेंट कर रहा हो, वही लॉजिस्टिक्स में भी डील कर रहा हो और वही लोगों की हायरिंग कर रहा हो. So there will be no other departments then. A company will be a marketing department. But that's not what happens. That's not how it goes about. There are different departments. Every department has its own weightage, its own set of responsibilities. और वो अपने उस level पे काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को support provide कर रहे होते हैं. Mind you, you as future business managers should keep this thing in mind कि कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से सुपीरियर नहीं होता, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होते हैं. बिकॉज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के कंपनी सक्सेसफुल होगी. ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह अगर क्रिकेट में बॉलर का ख्याल हो कि सारा काम बॉलर ही कर सकता है. अब बॉलर चाहे जितनी अच्छी बॉलिंग करा ले, कैच अगर आएगा तो कैच तो फील्डर नहीं करना है ना, या बॉलर भी जो है वो उधर से भाग के बाउंड्री पे जाके कैच तो नहीं कर सकता, या स्टंप करने के लिए तो कीपर ही चाहिए ना. स्टंप जो है वो बॉलर खुद से स्टंप भी नहीं कर सकता. और चाहे कितनी भी अच्छी यॉर्कर करा दे, अगर बैट्समैन ने उसको प्लेस कर दिया है तो उस बॉल के पीछे somebody has to run after the ball, pick up that ball, throw it back, and then somebody has to catch the ball and throw the ball into the stumps. ये तो नहीं हो सकता कि एक बॉलर सारे काम करे. If the bowler alone says that I am the best and no one else can do what I am doing, so no, the bowler has its own importance, but the other people, they have to do some part so that ultimate goal क्या है? Ultimate goal ये नहीं है कि bowler ने 10 ओवर कराने हैं. Ultimate goal is that the team should win. इसी तरह ultimate goal ये नहीं है कि product एक produce हो जाए. Ultimate goal ये भी नहीं है कि customer की need फुलफिल तो हो जाए, लेकिन कोई प्रॉफिट भी तो आए, कोई पॉकेट में मनी भी तो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी. सो एज मार्केटर्स, एज प्रोडक्ट मैनेजर्स, आई बेग योर पार्डन, एज प्रोडक्ट मैनेजर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंफॉर्मेशन है दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम द मार्केट टू द प्रोडक्शन, फ्रॉम द मार्केट टू द मार्केटिंग इटसेल्फ, फ्रॉम द मार्केट to the product developers,
और आपस में फाइनेंस को इंफॉर्मेशन भी हो कि जनाब ये हमारी लॉन्ग टर्म बताएं, फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, अकाउंट्स वाले को बताएं, हमारी जरा स्टेटस तो हो, हमारा प्रॉफिट लॉस तो पता चले हमें. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इट इज आउटबाउंड फोकस्ड एंड इट इज इनबाउंड फोकस्ड. इन एन इनबाउंड सिचुएशन आपको जो विद इन द इंफॉर्मेशन कंपनी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो विद इन द कंपनी एक्टिविटीज हो रही हैं, और आउटसाइड ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द कंपनी एंड इनटू द कंपनी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की इसकी फोकस होता है. ठीक है, द मैनेजमेंट इज इनबाउंड. जो इनबाउंड इंफॉर्मेशन आ रही होती है दैट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और जो मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की दैट इज आउटबाउंड. एंड दीज आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स. दोनों एफर्ट्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की भी और प्रोडक्ट मार्केटिंग की भी, ये दोनों की एफर्ट्स एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होती हैं विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ maximizing sales revenue, market share and profit margins like we studied it in the first slide. Product management ka role is so important that it isn't going to surprise many people ke almost 8% of product managers they report directly to the CEOs. जो company के owners होते हैं, the chief executive officers, the product managers are directly reporting to them. और जब कोई भी प्रोडक्ट लेवल डिसीजंस हो रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेवल रिव्यू हो रहा होता है, कोई प्रोडक्ट लेवल पे अमेंडमेंट का काम हो रहा होता है, या प्रोडक्ट लेवल की मीटिंग अटेंड हो रही होती है, एट दैट पॉइंट इन टाइम जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं दे मे एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सीईओ. वो सीईओ के बिहाफ पे वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं. सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट. There are some companies which still haven't been able to see the value of product management. वो अभी भी product management को एक additional role समझते हैं, लेकिन उसका नुकसान उनको ये होता है कि at the end of the day, when that company is not able to achieve the desired profits, they're not able to expand their sales, maximize नहीं कर पाते अपनी sales को और प्रॉफिट्स नहीं कर पाते, तो देन दे हैव टू curtail their operations, they have to go to layoffs, या उन्हें अपना काम को और एक्सपैंड करना पड़ता है, यानी एक रिएक्टिव सिचुएशन में होते हैं. विद द इंसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट द कंपनी इज able to gain the advantage that they can make decisions on a proactive basis, while in the absence of a product management program, companies generally they're acting as a reactive situations पे, जो situation देखी उसके हिसाब से react किया. Not necessarily जिन कंपनीज में प्रोडक्ट मैनेजमेंट्स होती हैं वहां पे वो रिएक्ट नहीं करते, ऑफ कोर्स वो भी रिएक्टिव उसमें वो कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस दैट मे अराइज. लेकिन वो ये अनप्लान्ड एक्सपेंशंस और लेऑफ्स की वजह से जो फाइनेंशियल कंपनी को धचका लग रहा होता है वो उससे सेव कर लेते हैं. अदरवाइज कंपनीज दे हायर एंड फायर द प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप. एक हॉप नॉच सी सिचुएशन बची होती है और कंफ्यूजन, कंपनीज इन कंप्लीट स्टेट ऑफ डिसअरे. These same companies are the ones that seem to have a similar roller coaster ride in revenue and profits as well. Obviously, जब कंपनी की प्रॉपर प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही होगी, कंपनी की प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रही होती, प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट ईच अदर, आपस में लोगों से जो है वो कंपनी का जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इफेक्ट्स, जब वो नहीं होंगे तो कंपनी इज गोइंग टू बी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड. रोलर कोस्टर राइड मतलब कभी ऑपरेशंस ऊपर कभी नीचे, जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर जो कि ऊपर नीचे जिगजैग एक वेव की तरह चल रही होती है. तो जो एक रोल होता है एक प्रोडक्ट मैनेजर का, वो स्ट्रेटेजिक से लेकर टैक्टिकल लेवल तक तमाम तर जो एक्टिविटीज होती हैं उसका पार्ट होता है. एंड ये तमाम तरह एक्टिविटीज जो हैं दीज fall within the domain of a product manager.
अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, वैसे वैसे ये इंफॉर्मेशन लोगों को समझ आती रही है, लोगों को इस बात की सबूत मिलते गए हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल है वो बेसिकली कंपनी को एक स्मूथ सफ़र करने के लिए बनाया जाता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल कंपनी को जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो रोलर कोस्टर राइड्स हैं, उसको अवॉइड करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम किया जाता है। एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, he sees where the company is heading, properly does the forecast, and then sees through the company through the troubled waters and into the situation where the company originally wanted to be. जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, they often serve as an interdisciplinary role as well. यानी इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं, वो उन तमाम तरह डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजॉन कर रहा होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। और इफ देयर आर एनी गैप्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टीम्स, सो द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली ब्रिजेस दैट गैप। वो कोई बैरियर हो रहा होता है उसको भी खत्म कर देता है, और इट हेल्प्स कि इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू अचीव व्हाट इट हैज टू अचीव, देन इट कैन हेल्प, इट इज परहैप्स द मेन रोल फॉर द कंपनी टू रिवाइटलाइज एंड रिवैम्प इट्स स्ट्रैटेजीज एंड इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे ज्यादा जो है, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो एक्सटेंसिव जो काम हो रहा है, वो बेसिकली बिटवीन द इंजीनियरिंग ओरिएंटेड टीम्स और कमर्शियली ओरिएंटेड टीम्स में हो रही होती है, बिकॉज दीज आर टू टीम्स जिनके लोग आर कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आते होते हैं। जो इंजीनियरिंग के द पीपल हु आर वर्किंग फॉर इंजीनियरिंग, दे मोर टेक्निकल एंड दे सी प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जो कमर्शियल साइड के लोग होते हैं, दे सी द प्रोडक्ट फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। अब उनका सेल्स, उनका टारगेट मैक्सिमाइज सेल्स होता है, उसके लिए वो अपनी एफर्ट्स उस हिसाब से कर रहे होते हैं, और उसकी के हिसाब से उनको जो मार्केट से जो फीडबैक मिल रहा होता है, वो उसको बेसिस बना के अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, उनके बिल्कुल कभी कभी डिफरेंट होगा एस्पेक्ट। दे मे बी कॉन्सेंट्रेटिंग कि प्रोडक्ट के इंजीनियरिंग, उसकी टेक्निकलिटीज, उसके जो फीचर्स हैं, वो उसको इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे। अब मे बी जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रोडक्ट के इन्हांसमेंट हो रही होती है इन इमेज, इन इट्स फीचर्स, इन इट्स एट्रीब्यूट्स, जिससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और जो कमर्शियल है वो एक जगह पे ना मीट कर रहे हो। द कमर्शियल मे नॉट वांट दैट थिंग टू हैपन, बट द इंजीनियरिंग मे वांट दैट थिंग टू हैपन। अब इससे एक अनहार्मनी क्रिएट हो सकती है। इस अनहार्मनी को डिफ्यूज करने के लिए द प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज द वन फोकल पॉइंट जो कि बैठ के दोनों बातों को सुनेगा। वो इंजीनियरिंग की बातें और कमर्शियल की बातें एक दूसरों को उस जबान में समझाएगा जिसमें वे दे अंडरस्टैंड इट बेस्ट, यानी उनको ट्रांसलेट करेगा। बिकॉज ये एक ऐसे पूल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक ऐसे पूल ऑफ पीपल होते हैं जो कि दोनों साइड्स को देख रहे होते हैं, उनको दोनों साइड्स की इंफॉर्मेशन होती है और नॉलेज होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग में होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे भी होते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स मार्केटिंग में होते हैं। तो उसका पर्पस ही यही होता है कि वो एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ताकि जो मार्केटिंग और जो सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रेलेवेंट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इसके ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि दे मे वर्क टू एक्सप्लेन द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट बैक टू द मार्केटिंग सेल्स। दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल स्पेसिफिकेशन। यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो दो रोल्स प्ले कर रही होती हैं। इट्स आइदर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और द कमर्शियल स्पेसिफिकेशंस। In both cases, they're translating
the information from the sales people to the technical people, or from the technical people to the sales people, who are not actually getting what is the best solution for either of them. Product managers may also have one or more direct reports who manage operational tasks. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं उनको जो है वो एक टीम, उसके अंडर एक टीम ऑफ पीपल मे बी वर्किंग. देयर कुड बी वन पर्सन फ्रॉम द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, वन फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, one from the electrical department, another one from the mechanical department, one from the marketing, one from the human resource, and one from the accounts. अब उसके पास सारे डिपार्टमेंट्स का एक एक रेप बैठा होता है, so that when the information comes in, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आए जो कि मार्केटिंग से आए, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए टू द टेक्निकल साइड, उसको इन द लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड इट बेस्ट, उसके पास डायरेक्ट रिपोर्टर ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग वाले, टेक्निकल वाले, प्रोडक्शन वाले और मार्केटिंग वाले वो साथ में बैठ के बात कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आई थी तो इसका मतलब क्या हो सकता है, और उसको फिर उस टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मार्केटिंग रिक्वायरमेंट को इट इज देन सेंट टू द ऑपरेशंस. और इसी तरह जब देयर इज अ पूल ऑफ पीपल, अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग समथिंग एंड देन कमिंग टू अ good positive outcome, so the company may explore new initiatives as well. कंपनी को बहुत सारी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ सकती हैं जो कि when they brainstorming, when they sitting together in discussing things, तो बहुत सारे ऐसे भी एस्पेक्ट्स आ सकते हैं जिससे उनको नई अपॉर्चुनिटीज नजर आए. जहां मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च फंक्शन सेपरेट है, वहां पे अगेन द प्रोडक्ट मैनेजर हैज टू फिल इन, he has to bridge the gap between the research and the manufacturing. अब जो product managers हैं who are basically working within the product management functions, they can either be a formal part of the marketing department. वो marketers हो सकते हैं, उनका background could be of marketing, business के graduates हो सकते हैं वो. लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ऐसे भी होती हैं जहां पे the product managers, they're working either in the engineering department or he may be an engineer with a supplementary training of marketing. आपने अक्सर दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जब एडवर्टाइज करती हैं फॉर a position of a product manager, तो they ask कि वो जो बंदा है he should be having a technical degree plus an MBA. अब why is this? It may seem that these are two different 360-degree opposite fields हो सकती हैं. अब engineering and a master's in business administration और a BBA जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं. अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें ये हो रहा है कि एक ऐसा बंदा जिसको दोनों चीज़ों का बैकग्राउंड का पता होगा, दोनों साइड्स की इंफॉर्मेशन मालूम होगी, तो फिर जब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो he will be able to understand the thing and translate it because of his broad spectrum. His spectrum is starting from engineering and ending at business administration, at marketing. So the product manager basically offers an interdisciplinary role. Next is identifying new markets. Product management का एक role is to identify a market opening. As product managers, they need to see कि what new opportunities are coming into the market. वो ये चीज़ को explore करेंगे because they're acting as an intermediary between the different departments that are working around. So what they're going to see is, after they're getting the feedback from the marketing departments, that there's an unfilled opportunity. एक ऐसी opportunity exist करती है market में जो कि fill की जा सके. उस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हैं, आफ्टर देव आइडेंटिफाइड द न्यू मार्केट, दे देन गोइंग टू क्वांटिफाई, वो उसको एक हिसाब में लगाया जाएगा. दे गोइंग टू क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर कि इज इट बिग इनफ टू जनरेट प्रॉफिट. देखिए, अपॉर्चुनिटीज, देयर मे बी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज.
companies will not always jump at every opportunity that they will find. They will only utilize and work on those opportunities which they think have sufficient amount of that has a sufficient amount of efforts and a sufficient amount of potential कि वो उन efforts को utilize कर लें और market में से profit generate किया जा सके. For instance, पिंडी में सेवर फूड्स जो हैं, एक राइस का जो प्लाव, सेवर प्लाव, वो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर फूड आउटलेट नाउ और पीपल लव्ड हैविंग सेवर. अब सेवर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड भी कर लिया और ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के साथ साथ उन्होंने सेवर को इस्लामाबाद में भी लॉन्च कर दिया, इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट में भी लॉन्च हो गया और इस तरह करके. सेवर का जो मेन फैक्ट्री है जिस जगह पे, आई वॉज वंस पासिंग अराउंड दैट प्लेस, तो आई सॉ दैट कि ये उनकी एक जगह है जहाँ पे उनकी रॉ मटेरियल को वो हाफ कुक कर लेते हैं और उसके बाद उस हाफ कुक को वो प्रोसेस कर देते हैं, अपनी मेन आउटलेट्स पे जाके उसको कुक कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं. एज आई जस्ट सेड अर्लियर कि हमें और आप, हम दोनों मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे जहाँ इस किस्म की चीज़ का पता चलता है, आई गो अप एंड आई एक्चुअली आस्क दोज पीपल रेलेवेंट क्वेश्चंस. सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी, मैं उधर चला गया उस फैक्ट्री में और मैंने उनसे इजाज़त ली, उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है जीटी रोड के ऊपर, आपकी आउटलेट्स जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं और कॉलेज रोड पे हैं, तो आप इस जगह पे कोई शादी हॉल या कोई अपना आउटलेट क्यों नहीं खोल देते? तो वो जो वहां पे बंदा था जो कि सपोजिडली वॉज नॉट ए बिजनेस ग्रेजुएट, उसने मुझे कहा कि बेटा बात ये है कि यहाँ पे अभी इतने घर नहीं हैं, इतनी यहाँ पे मार्केट में मेरे लिए इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं इधर अपनी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करूं. वन मैन, वन एंटरप्रेन्योर, सिंगल मैन हु इज रनिंग द शो, तो वही अपनी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, वही प्रोडक्ट मैनेजर भी है, वही मार्केटिंग मैनेजर भी है. सो एज हिज कैपेसिटी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, ही केम अप विद दिस आंसर विच ही वाज जस्टिफाइड कि अभी सिंस द मार्केट इज नॉट बिग इनफ, सिंस वो जो मार्केट है वो इतने उसको सफिशिएंट प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर सकेगी कि वो उस नई मार्केट में चला जाए, इसलिए he chose not to enter the market for the time being. He has this place, he has this space, and he's just waiting for the right time. But during that time, instead of blocking his amount, his investment at a particular place which does not have sustainable profits, he is continuing to invest in his existing outlets in College Road and Islamabad. So second, यही बात जो है, ये मार्केटिंग जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशन की जहां जहां उनको अपॉर्चुनिटीज की सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, वो उन पे दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट और फिर दे कम्युनिकेट दिस अपॉर्चुनिटी टू द एग्जीक्यूटिव टीम. वंस दे हैव आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी, दे विल देन कम्युनिकेट दिस to the executive committee, the executive team. The executive team comprising of the chief executive officer, the chairman of the company, the chief financial officer, the chief technology officer, maybe the chief marketing officer as the term is now developing, the chief for the human resources, then the directors for marketing, finance, controls, production, procurement and logistics. So all these people will then sit down together and discuss the idea of the product management. Once they've decided, once they've understood the problem and have decided to pursue the opportunity, depending on the financial forecasts, the risk assessments, the competitors involved, once they've done all this,
only then they will give a go ahead to the company, to the production team, to the marketing teams, and then the marketing efforts would begin. If it's a new product that is going to be introduced, that means that the marketing, the product management will have to sit down together. They'll coordinate with the production department, and the production department will produce something which can either be produced utilizing of the existing machinery, or by fine-tuning or tapering or slightly changing the machinery that is already existing with them. In another case, it may require acquiring new machinery altogether, which will definitely ask for more investments. But then, after concrete study, since the company is entering into that market, this means that the company will be investing more, but they're going to get more returns as well. So once this thing is done, the company would start getting into its STP process, the branding process, और सारे procedures के साथ, अपने सारे tools के साथ, they can then produce the right thing that is going to satisfy the needs of the customers. So, coming to a conclusion, we have defined, I've made the exact definition for product management, which says that product management is involved in developing an understanding of the market. सबसे पहले तो जो product management है, वो market को समझने का काम करती है. It understands the market, market को समझे, and then they've seen whether there is an opportunity that exists or there is not an opportunity. Okay. If the opportunity is there, they're then going to communicate this to the higher management. Then, because of their understanding of the market, because of their correct assessment of the market, this is going to lead to the STP, the segmentation, the targeting and positioning. Once this segmentation, targeting and positioning is being done, the company then positions a product and creates an image, creates a brand image. एक brand की positioning होती है, brand attributes की basis पे product position कर रहे होते हैं. आपने अपनी जो target market है उसके mind में the company starts putting in the mind that this is a product that's going to satisfy their need. Next, the company goes into the marketing mix. It starts utilizing the 4 P's and the 3 additional P's as well. So the product, its pricing, its place, its promotion, the people, the physical evidence, and the processes. Each of these are utilized in their own specific and this manner so that the product is designed and developed accordingly, and such a product is developed which best satisfy the needs of all the consumers, of all the customers, and is able to differentiate itself from the competitors as well. In short, product management is marketing in the marketing organization. देखिए marketing का काम क्या होता है? Marketing का काम होता है to understand the needs of its customers, develop a product accordingly, and then satisfy that product, promote sales of that product. इसी तरह जो product management होता है, वो product within the organization भी तो कोई department होगा which is going to tell others कि जी there's an opportunity, आप इस opportunity को satisfy करने के लिए you have to develop a product. So that particular function that is being done by the project management to convince its own people to develop a product which is going to satisfy the need of a particular segment. That is the role that is undertaken by the product management division or the product managers. So, what we can see is that product management is a strategic role. And the product managers, they bring a powerful combination of skills
यानी जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसके पास ही हैज स्किल्स, ही हैज अ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, उसके पास ये दोनों एक्सपर्टीज हैं, कंबाइंड विद मार्केट एंड डोमेन नॉलेज एज वेल, और उसको बिजनेस सेवी भी है वो, यानी उसको टेक्निकल नॉलेज भी है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज भी है, एंड उसको मार्केटिंग की नॉलेज भी है, and on the basis of all these he is then able to develop a product which is going to satisfy the needs of his customers and beat the competitors as well. Basically जो marketing people हैं, this is being developed, this has been seen to differentiate the product managers at each different level. So the marketing people, they know how to communicate. The product managers, they know what to communicate. Sales people, they know what one customer wants to buy, and the product manager determines if the deal represents a single customer or a market full of customers. इसी तरह developers know what can be built, and product managers know whether it should be built or it should not be built. And product management is a strategic role focused on what product and marketers we can serve in the years to come. With this, we now conclude this lecture. Thank you for joining me. In the next lecture, we're going to come up with something new which is going to help you understand the strategic marketing process even better. All for now, thank you so much, and Allah Hafiz.